Hello. Hello, sir. Hi. Good morning. Good morning, sir. Okay, so have you solved the questions? Yes, I have some doubts. Yeah. Go ahead. So, exercise 34B. 34B. So, You were doing vector. Which chapter you are talking about? so vector So exercise 4. 34B. Okay. Okay. 34. Yeah. So, question number. We have only two, three questions. Yes, sir. Question number third. Third. Okay. Fine. So, third K, G, and H. G and H. Okay. Answer EB. G H E. Yes, sir. ठीक है ना ये सब तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको Yes, sir. ओके सो इसमें करना क्या है हमें ए बी सी डी इज अ रोम्बस ठीक है Yes, ए sir. बी सी डी रोम्बस all sides are equal rhombus means all sides are equal but the angles are only opposite angles are equal right Yes, sir. AB is equal to A BC is B and which of the following statements are true so what they have given in part E dA bar modulus of dA bar right is equal to minus modulus of B. So wrong. See what they have given here is length of dA right. Yes, sir. Modulus of dA bar means length of dA. Okay. So length of dA can't be negative number first of all right. Yes, sir. Length of any line cannot be negative and what they have given here is modulus of b so this is also positive number only like the modulus of b is also length of the vector b which is supposed to be positive number only and we have put minus and there so negative length cannot be negative that you can make out so this is wrong false length cannot be negative false okay now Yes, sir. G is AD is equal to length AD they are talking about. Okay. Now in G part Yes, sir. they are talking about only length. Understand the difference. Vector and length are different things. Length is magnitude of the vector. It's just the length of any suppose any line. Okay. So AD is they have not put bar over AD, right? It means this is length of AD. Hmm? They have not put bar. Yes, sir. If they have put bar over it, then it would be a vector quantity. But this is length of AD. So length of AD can be equal to A because all sides are equal. In the given rhombus, all sides are equal. So the length of AD, okay, is equal Yes, to sir. length of AB.
So if they mean that the AD is the length of AD basically, because it is not a vector. So what I am assuming here is they are talking about the length of AD here in left hand side. So that is equal to mod A. So mod A is basically length of AB. So lengthwise, magnitude wise, both the line are same. Okay. Yes, sir. So it is supposed to be true. What is the answer? Yes, sir. Okay. Now H. So in H, DC minus A. See DC, AB, DC, AD, BC, the length of each sides are same, right? Yes, sir. So if you are taking DC here, so the length of DC is also the length of AB, which you can write as modulus of A, because AB is modulus of A, right? See, vector AB bar is given, which can be written as A. Another notation of vector is the small letter, bold small letter, right? So AB bar is nothing but A. So the modulus of AB bar, which is the length of AB, is same as the modulus of A, right? So lengthwise, their length are equal. So Yes, the sir. length of DC is also equal to length of AB, which is modulus of A. So modulus of A minus modulus of A will be 0. So if this is 0, yeah, this is 0. So this is true. But if this is vector, what is the answer? एक सेकंड को फॉल्स तो नहीं दिया है, क्योंकि ये वेक्टर दिख रहा है मुझे सेट बोल्ड। फॉल्स. फॉल्स है ना, क्योंकि ये यस. वेक्टर लिख दिया, एक्चुअली ये बोल्ड में लिखा है। देखो, ये अगर बोल्ड में लिखा है बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। अगर ये बोल्ड लिखा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सिर्फ ऐसा जीरो लिख दिया है तो ये जीरो है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, क्योंकि ये बोल्ड लिखा हुआ है ना। ये जो है ओ है, वो जीरो नहीं है, एक्चुअली ओ है। तो ओ है, इसका मतलब वो वेक्टर लिखा हुआ है, जीरो वेक्टर। सो स्केलर माइनस स्केलर नेवर बी इक्वल टू वेक्टर, दैट्स द प्रॉब्लम। सो दिस विल नेवर बी इक्वल टू वेक्टर। मतलब आप वेक्टर में तो दोनों क्वांटिटी होता है ना, डायरेक्शन एज वेल एज स्केलर। आप यस. स्केलर को वेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज वेक्टर हैज स्केलर एज वेल एज डायरेक्शन, वेयर एज स्केलर हैज जस्ट मैग्नीट्यूड। सो स्केलर इज नेवर इक्वल टू वेक्टर। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये एक वेक्टर क्वांटिटी दे दिया है। ये जीरो, जीरो नहीं है, वो ओ बार है एक्चुअली। तो बोल्ड में लिख दिया है, तो विदाउट सेइंग एनीथिंग इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड ये स्केलर है, तो स्केलर कैन नेवर बी इक्वल टू वेक्टर। अगर वो सिर्फ जीरो रहता, ओनली जीरो, देन राइट था। ठीक है, यस सर. तो ये फॉल्स हो गया। एनी डाउट हियर? नो सर. ओके, ओके, कौन सा करें? सो वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन। अच्छा, कॉन्सेप्ट पे आए। यस सर. ओके, so in vector addition, see, we can add vectors because it has direction. Okay, so if suppose on xy plane, on a plane, if one vector is going this way and then another vector, suppose this is say, this is a, this is b, another vector going this way,
Okay, started from here and end here. Okay, so what is the resultant vector here? A plus B. See, the resultant vector is along this line, right? Means someone started from this point A, reached B, and then started from B and reached C. So the resultant vector is AC bar. So AC bar is equal to AB bar plus BC bar. Okay. So this is called triangle law of vector addition. Triangle law. Okay. Triangle law of vector addition. So they explain this here. Now suppose we have two vectors, this and this. This is A. Let's say this is B. Now how do we add them? So any vector which are parallel, like if suppose we are given A here, right? So any vector which is parallel and equal in magnitude will be same as the given vector. So if I am drawing this vector keeping the magnitude and direction same, so I can write this as A, right? Because this has the same direction. What see whatever I am saying, you have to assume that because uh, I'm not just drawing that with scale and all. Okay, so this vector has the same direction as of this, and the magnitude of this vector is same as this. Means the length of this vector is same as this vector. So if direction and vector are equal, are same, then these two vectors are same. Okay, these two vectors are equivalent. Okay. Now the next part here is how do we place B? How do we place B? Okay, so B is supposed to be placed where A ends. Okay, so A ends here, and we'll place B in such a way. Okay, like we'll draw a vector whose magnitude as well as direction are same. Then they are supposed to be equivalent vector, right? So this is how we can add vectors. Now we know the resultant vector is supposed to be along this line, right? Because of the triangle law of vector addition. Okay, so this is how we can show it on paper, that if two vectors are given like this, okay, then how do we add them? So we need to draw the equivalent vectors, okay, and we have to So, draw the second vector in such a way that it just started with where the first vector ends. So this is the resultant vector. Okay, so A plus B. Understood? yes, Okay, sir. fine. Now next is zero vector. So as we have seen that should I explain you the solved questions also? Solved questions they explain कर दूँ जैसे Yes, example. sir. हाँ, Yes, only one example. only one example. Okay, so this is the question here, the solved example. Okay, now Yes, find sir. a single vector which is equal to this. So they have given a diagram here. Hmm, and Yes, sir. we have to find out the resultant vector. What did I say? Resultant vector. Resultant vector means the like A plus B we were talking about, of the resultant of A and B when we add them. Okay, so this is called the resultant vector, the final displacement you can say. So AB bar plus BE bar.
So where is AB bar here in the diagram? You can see that AB bar. So as soon as we understand the direction from the given vector notation, okay, this is the given vector AB bar. So it means AB bar is started from A and at B. So the direction is basically from A to B. Understand? Whenever Yes, we sir. just look at the vector notation, it it describes the direction also. Hmm? So if Yes, sir. AB bar means that vector started from A and at B. So that is what the meaning of AB bar. So I have put the direction in that way. Understood? Now BE bar. So BE bar. So there is no BE drawn on in the diagram. So what we'll do? We'll just start that vector from B and at E. Okay. Now you can Yes, say that what would be the resultant vector, because we have started our journey from, just understand this way, we have started our journey from A to B. B is one of the halt, and then again we started from B to E, right? So A to B, yes, sir. B to E. So what is the resultant displacement? That is your resultant vector. So what is the resultant displacement? B to E, No, no. A to A E. B, then B to E. So resultant displacement is A to E. No, Yes, sir. is it so difficult to understand? आप No, यहाँ sir. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, फिर वहां से वहां जाते हो, तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. Understood? The Yes, final sir. displacement you need to understand, and the direction also, like from the starting to the end point. So the direction of this resultant vector is A to E. So the resultant vector is basically AE bar. So what should I write here? A E AE bar. bar. Understood? You can just put bar or you can put arrow over it. That makes same sense. Okay. Now what about B? B here. B C bar. D to C. Hmm? See D to C, yeah, DC. So just let me Yeah. rub the remaining part here. D to C, DC bar this way. Okay. Then C CA. So CA this way. Then A E AE, AE this way. Then, so what is the resultant? What is the D final displacement? D E. DE. You started your journey from D and at E. So the final displacement is DE bar. There is no break in between. So you, that's like, need not to like explain that. It should be a continuous journey, right? Yes, sir. Now what about C? C B D D D C. Sir, zero. जीरो कैसे हो गया? सर कुछ है ही नहीं इनके बीच में. कुछ है ही नहीं इन लोग के बीच में. तो C to B. C to B. देन B to D के लिए सर लाइन ड्रॉ होगी. हाँ, B to D. एंड सर D to C. D to C. C. कहाँ नो पहुंच गए? वापस वहीं पे. सेम पॉइंट पे. तो ये क्या लिखूं यहाँ पे? नो डिस्प्लेसमेंट. नो डिस्प्लेसमेंट को और कैसे लिख सकते हैं? जीरो. क्योंकि जीरो नहीं, जीरो बार. जीरो ठीक है बार. ना? या जीरो वेक्टर बोल दो, तो क्या क्लियर हो जाती है बात कि आप वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो. सो व्हेन वी ऐड वेक्टर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट वुड ऑलवेज बी वेक्टर. ओके. सो आप सिर्फ जीरो डाल दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा.
आपको जीरो वेक्टर डालना है, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर के लिए या तो आप एकदम बोल्ड कर दो उसको आपके बुक के नोटेशन के अकॉर्डिंग, या समटाइम्स वी कैन जस्ट Yes, sir. पुट बार ओवर इट, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. नाउ जीरो वेक्टर हियर, the next concept is zero vector. So as we just understood what is zero vector, because in the course of journey if there is no displacement, then how do we denote that, right? How do we describe when there is no displacement? So we can describe that by zero vector. Zero Okay, vector. so zero vector is a vector quantity whose length is zero. Okay, zero vector is a vector quantity whose length is zero, Zero. and we can add that vector quantity, means zero vector quantity, to any vector quantity. It keeps its identity, sorry. Okay, the vector keeps its identity, means अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करते हो किसी भी वेक्टर में तो वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको ये चीज, Yes, sir. बेसिक चीज है। सो जीरो वेक्टर प्लस ए is also a, and both of them equal to a, right? And how do we Yes. understand zero vector? One more time. A, the vector a is subtracted, or if it is added with the same vector with negative direction, hmm, then you will get zero vector, Zero right? vector. Yes, sir. Hmm. Now example 4. So in example 4, let's understand the first question. Sonia can swim at 3 kilometer per hour. See, this is velocity given. Hmm? Yes, sir. So this is vector quantity. Velocity is vector quantity. 3 kilometer per hour in calm water. She swims in a river where the current is 1 kilometer per hour. Okay, in Yes, an sir. easterly direction. The river is flowing towards east. Hmm? Yes, sir. Find the resultant velocity if Sonia swims with a current. With a current means Sonia swims in the same direction in which the river is flowing. Yes, sir. ठीक है ना, मतलब ईस्ट में अगर फ्लो हो रहा है रिवर, देखो रिवर का वेक्टर यहाँ पे शो किया है, मीन्स रिवर इज फ्लोइंग इन ईस्ट Yes. डायरेक्शन। सी दे हैव shown the direction as well. So east is in this direction, right? So river Yes. is flowing in east direction. Velocity vector, they have written every word here. So vector is like velocity is a vector quantity. So they have mentioned one thing, that the velocity vector of the river is this. Okay, means river is flowing with this vector r. Okay, Yes, sir. whose magnitude is 1 kilometer per hour. Fine, which is Yes, sir. given. Which is given. Magnitude is 1 kilometer per hour, and the direction is in east, towards east. So if Sonia swims with the current of the river, it means what? आप खुद ही जरा थोड़ा सोचो, अगर आप स्विम कर रहे हो और रिवर के डायरेक्शन में ही स्विम कर रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा? तो फ्लो थोड़ा तेज होगा स्विमिंग का। फ्लो थोड़ा तेज नहीं होगा, फ्लो उतना तेज होगा जितना आपको रिवर सपोर्ट कर रहा है। तो रिवर का जो डायरेक्शन है, मतलब रिवर का जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो आपके स्पीड में ऐड हो जाएगा। मतलब आपके जो स्विमिंग का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें ऐड हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात यस ये है। सर। सो द नेट रिजल्ट विल बी आर प्लस एस, ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। नेट रिजल्ट इज
r plus s. तो सोनिया swims at 4 किलोमीटर पर आवर, 3 प्लस 1. वन। ठीक है। अगर आप देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मीन्स अपवर्ड फ्लो में जा रहा है, अपोजिट फ्लो में जा रहा है। ठीक है ना। एक होता है डाउनवर्ड फ्लो, एक होता है अपवर्ड। तो डाउनवर्ड फ्लो मतलब विद द करंट, अपवर्ड फ्लो मतलब अपोजिट द करंट। तो अपोजिट करंट में अगर जा रहा है तो रिजल्टेंट तो आर प्लस एस ही होगा। दोनों वेक्टर को आप ऐड करोगे, अभी हमने देखा वेक्टर एडिशन में कि अगर दो वेक्टर रहेगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जस्ट द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, राइट? So the यस। resultant vector, the net result will be r plus s only. But the thing to be noted here is r is in this direction and s is in the opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक एक दूसरे का नेगेटिव है ना, यस सर। है ना। तो यस। रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब देखो आप, इसका वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखो, और इसका वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। यस। देखो मैंने वेक्टर भी छोटा बनाया ताकि आप समझ सकोगे, है ना। 1 के हिसाब से बनाया, एक 3 के हिसाब से बनाया, समझ रहे हो। यस। मैग्नीट्यूड भी तो 3 किलो ऐसा है ना, 3 किलोमीटर, मतलब 1 आवर में 3 किलोमीटर जाएगा, और रिवर 1 आवर में 1 किलोमीटर जाएगा, तो मैग्नीट्यूड भी तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, आप 3 किलोमीटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके फाइनल रिजल्ट है, नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर का, 3 - 1। है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर आपका 2, लेकिन आप फिर भी किस डायरेक्शन में मूव करोगे, वेस्ट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि अपोजिट जा रहे हो ना आप, मतलब यस वेस्ट की तरफ जा रहे हो। अगर रिवर ईस्ट में फ्लो हो रहा है, आप वेस्ट में जा रहे हो, ऐसा हो रहा है। पहले केस में क्या हो रहा था, रिवर ईस्ट में जा रहा है, सोनिया भी ईस्ट में ही जा रही है ना, तो ये बढ़ गया। अभी क्या हो रहा है, आप वेस्ट में जा रहे हो, रिवर ईस्ट में जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है, नेट रिजल्ट जो होगा वो आर प्लस एस ही होगा, बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वेक्टर as far as the direction is concerned, it is subtracted and this is the resultant vector. So the Sonia swims at 2 kilometer per hour to the west. ठीक है। यस सर। ओके। नाउ सी पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, नॉर्थवर्ड। रुको इसको फिर से ले लो जरा। देखो अभी सोनिया कहाँ पे स्विम कर रही है, नॉर्थवर्ड, अक्रॉस द रिवर, है ना। रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, हाँ। यस सर। सोनिया कैसे, रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, सोनिया कैसे मूव कर रही है, ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। ठीक है। यस। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ये आर है, ये सोनिया नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्विम कर रही है, मूव क्या करेगी पानी में, स्विम कर रही है। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर प्लस एस ही होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज। तो यस सर। रिजल्टेंट वेक्टर आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, विच इज आर प्लस एस, है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, मतलब सोनिया मूव कर रही, मतलब ऐसा स्विम कर रही है, और इसको रिवर के करंट में फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, आ जाएगा आर प्लस एस आ जाएगा, राइट। यस। तो इसमें आप बताओ मुझे आर प्लस एस कैसे निकालोगे। आर देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, सर पाइथागोरस। यस, 1 किलोमीटर 1 आवर में, एंड ये 3 किलोमीटर 1 आवर में होता है ना। तो ये यस। इसका तो आप 1 आवर में कितना किलोमीटर मूव करेगा ये निकाल सकते हो ना। यस सर। So which is square root of 1 square plus 3 square. So the resultant velocity vector is uh, just, 210। ये तो स्पीड हो गया, है ना, 3.16 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड हो गया। अभी डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे,
डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ से कितने एंगल पे मूव मतलब स्विम हो रहा है, रिजल्टेंट स्विम कितने एंगल पे हो रहा है। तो नॉर्थ से ये आप निकाल लोगे ना एंगल, है ना। डायरेक्शन आप कैसे बेयरिंग से देते हो ना, डायरेक्शन यस कैसे डिफाइन होता है, बाय बेरिंग से। बेयरिंग। तो बेयरिंग कैसे नॉर्थ डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप ये एंगल कैसे निकालोगे, दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, दे हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, है ना। यस तो tan थीटा लगा दोगे, बिकॉज वी नो दिस 1 एंड दिस इज 3, सो tan थीटा यस लगा दोगे तो 1/3 आ गया एंड थीटा इज 18.4 डिग्री। सो सोनिया स्विम्स एट, है ना, ये 18.4 है, तो दिस इज ऑल्सो 18.4। तो 18.4 उस डायरेक्शन में, मतलब उसको आप बेरिंग के लिए बेरिंग की तरह शो कर दोगे 018.4 डिग्री, है ना, नॉर्थ। ये बात क्लियर हो जाती है ना, मतलब बेरिंग में आप 3 डिजिट से शो कर देते हो, है ना। सो यस सर। resultant direction of Sonia swim is 018.4 degree. That tells us Sonia swims in uh, नॉर्थ ईस्ट। northeast. Okay, in the bearing of 018.4 degree. ठीक है, आगे यस सर। बढ़ते हैं। Now next is exercise है, आप करना हो, ठीक है। यस सर। Now vector addition, vector subtraction. यस सर। So जैसे हमने वेक्टर एडिशन किया, तो that is also vector subtraction only if we change the direction. Okay, यस now how do we understand that is, suppose this is a, this is vector a, this is b. Okay, now if यस suppose I want to add these two vector, so how do we add, like this is I'll simply draw a vector which is exactly parallel to a and have same magnitude. So this is a, right, huh? And यस सर। I'll draw another vector with b vector, the equivalent vector of b, keeping same magnitude as well as direction. So this is b. So the resultant vector is a plus b. This is how we can add, right? This is how we यस understood the addition of vector quantity. But what would be if I ask you what is minus b? तो आप कैसे ड्रॉ करोगे माइनस बी। देखो बी तो यहाँ पे दे दिया हूँ ना, बी यहाँ पर है आपका, यस सर। माइनस बी कैसे ड्रॉ होगा। माइनस बी मतलब क्या, नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या। व्हाट इज माइनस बी। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड, राइट। तो यस सर। देखो अभी ध्यान से, मैं ये क्या बना रहा हूँ, बी बना रहा हूँ, है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन बना दिया। तो ये माइनस बी है ना, समझ रहे हो। देखो बी का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसके अपोजिट बनाना है तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ना। तो यस सर। इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड इज द नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ क्या, ये दोनों वेक्टर को, बोल रहा हूँ तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अभी ए ड्रॉ कर लो, राइट। यस सर। ये ए हो गया, ए वेक्टर विथ सेम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, एंड विल ड्रॉ माइनस बी। तो कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ए खत्म हुआ, यस सर। है ना, और माइनस बी ऐसा होगा, बराबर है। यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जरा बता दो मुझे। ए माइनस बी। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये ना, ए माइनस। सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या किया मैंने, आप समझ पा रहे हो बात।
देखो पहले तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में आपने सिंपली ऐड कर दिया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, है ना। जब भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आप क्या कर रहे हो, एक एक वेक्टर को आप नेगेटिव कर दे रहे हो, बी को आप नेगेटिव कर दे रहे हो, राइट। तो Yes, sir. दैट इज कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिंग नेगेटिव वेक्टर टू द वेक्टर, राइट। Yes, sir. हम्म, ओके, चलो आगे बढ़े। इसमें क्या एक्सरसाइज दिया है, चलो आप ही बताओ, ये एग्जाम्पल है, देखो बताओ समझ पा रहे हो इसमें देखकर। For the given vector, then find the एस minus. एन टी, एस एन टी दिया हुआ है, क्या आप एस माइनस टी फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, sir. करो फाइंड आउट। एस माइनस टी के लिए क्या करना पड़ेगा, टी का Opposite. नेगेटिव वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है ना। तो Yes, टी sir. टी ये दिया हुआ है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में हो जाएगा, दिस इज माइनस टी, राइट। तो Okay. अभी क्या करेंगे, देखो आप एस एस ड्रॉ करेंगे, एस ड्रॉ कर लिया, Yes, यहाँ sir. पे एंड हुआ, फिर टी ड्रॉ करेंगे, माइनस टी ड्रॉ करेंगे, तो माइनस टी, सॉरी थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो माइनस टी ऐसे हो गया है ना। Yes, देखो sir. ये एस हो गया, ये माइनस टी हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, S minus 2. यस, एस माइनस टी, ठीक है। Yes, sir. दिया है सेम, ऐसे ही है लगभग लगभग, हाँ। Yes, sir. बाकी ये तो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई करना है, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ अपने को इतना ही दिया है क्वेश्चन, डायग्राम दिया है इसका, No, sir. डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है ना। फॉर पॉइंट्स पी क्यू आर एस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, क्यू आर बार माइनस एस आर बार, ओके। Yes, sir. तो देखो तरीका इसमें है ऐसा कि आप नेगेटिव एस आर है ना, है ना, अगर आप इसका पॉजिटिव वेक्टर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, एस आर ऐसा करके देखो, एस आर ये एस आर समझ लो, ठीक है ना, क्या है ये, Yes, sir. ओके। सो अगर मैं नेगेटिव एस आर बोलूँ तो क्या हो जाएगा, Direction change हो गई, sir. डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आप कैसे बोल सकते, कैसे लिखोगे, आर एस लिख दोगे ना डायरेक्ट, Yes, sir. डायरेक्शन कैसे चेंज बताओगे आप, एस टू आ जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज करना है तो आर टू एस आ Hard जाओगे, work. राइट। तो Yes, sir. नेगेटिव एस आर इज बेसिकली आर एस, तो आप ये नेगेटिव हटा दो यहाँ से, मतलब नेगेटिव एस आर हटा के आप क्या लिख दोगे, प्लस आर एस, है ना। Yes, sir. तो देखो अभी क्यू से आर जा रहे हो, फिर आर से एस जा रहे हो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, Q से R, R से QS. क्यू एस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू से आर जा रहे हो, फिर आर से एस जा रहे हो, तो रिजल्टेंट क्यू एस हो जाएगा। डायग्राम की जरूरत है। No, sir. बी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, QR minus SR minus BS. हम्म। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या अभी ऑब्जर्व किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव हटाना है तो आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, है ना। Yes, sir. तो ऐसे ही कर देते ना, अभी फॉलो कर लेते हो रूल को,
यहाँ से Yes. निगेटिव हटाना है तो क्या Yes. कर दूंगा मैं, एस आर की जगह पे Plus RS. प्लस आर एस लिख दूंगा। फिर माइनस पी एस की जगह पे फिर से अगर नेगेटिव हटाना है तो प्लस SP. एस पे लिख दूंगा। बस। तो रिजल्टेंट देखो जरा ध्यान से, क्यू टू आर जा रहा है, फिर आर टू एस जा रहा है, फिर एस टू पी जा रहा है, तो रिजल्टेंट तो क्यू टू पी हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, सिंपल है। Yes, sir. अभी ये एक चाइना वाला कुछ आ गया, करें कि इसको छोड़ दूं? हाँ। Ling Yu. हाँ तो ये चाइना वाला करें कि छोड़ दें? चाइना वाले को नहीं सपोर्ट करना है ना। हाँ। Yes, yes. ऐसा कर लेते हैं। कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो आप, ये कह दिया झांगझू, नाम भी इन लोग का है, झांगझू। ठीक है, तो झांगझू Yes. क्या कर रही है, फायर कर रहा है, एरो फायर, है ना, अबाउट टू Yes. फायर एन एरो, At एरो target. टारगेट। ठीक है, ये टारगेट है यहाँ पे, जू यहाँ Yes. पे खड़ा है। Yes, sir. इन स्टिल कंडीशन द एरो वुड ट्रेवल एट 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. मतलब जब एयर नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, विंड फ्रिक्शन नहीं है, तो 38 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर जाएगा एरो। Yes, sir. बट टुडे हाउएवर देयर इज अ विंड ब्लोइंग एट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज विंड जो है बहुत तेज बह रहा है। कितने स्पीड से बह रहा है? 6 6 meter per मीटर पर second. सेकेंड से। देखो यहाँ पे विंड का नोटेशन दिया हुआ है ना। जू जो Yes. है, एरो यहाँ पे देखो फायर कर रहा है, ठीक है ना, एंड Yes. विंड का भी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्टली अक्रॉस द एरोज पाथ। ठीक है ना, मतलब एरो का Yes. पाथ अगर ये है तो लेफ्ट साइड से उसको डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है विंड, है ना। देखो ये Yes. एरो का पाथ ये है, ये विंड का पाथ है, समझ रहे हो। Yes, sir. तो क्या बोल रही है क्वेश्चन में, इन व्हाट डायरेक्शन शुड जू फायर द एरो सो दैट इट हिट्स द टारगेट। अभी देखो टारगेट यहाँ पे है, समझ रहे हो आप, No. टारगेट यहाँ पे है। हाँ, Yes, sir. अभी जू यहाँ पे खड़ा है। हाँ, अभी अगर इसको डायरेक्टली ऐसे फायर करता है एरो तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ विंड ये डिविएट कर जाएगा, है ना। Yes, sir. तो ओलंपिक का तैयारी कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ये Yes, sir. विंड है। अभी अगर रिजल्ट मतलब टारगेट पे जाकर अटैक करना है तो किस डायरेक्शन में इसको एरो फायर करना पड़ेगा? So northwest. हाँ, नॉर्थ वेस्ट करना है, बट वो डायरेक्शन हम बाद बाद में स्पेसिफाई करेंगे। नॉर्थ वेस्ट तो बहुत सारा होता है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट एग्जैक्टली कितने एंगल पे करेगा यही तो कैलकुलेट करना है ओलंपिक में, नहीं तो हम लोग भी तो प्लेयर हो जाते हैं, है ना। Yes, sir. तो उसमें कितने एंगल पे उसको करना है, तो ये मान लो ऐसे वो एरो फायर कर रहा है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विंड वो एरो को विंड क्या कर रहा है, पुश कर दे रहा है इस डायरेक्शन Ah, में, okay, bro. है ना। तो Yes, ये sir. रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्टली टारगेट पे अटैक कर देना है। ठीक है, Yes, sir. समझ रहे हो आप। तो रिजल्टेंट तो ये होना चाहिए ना। Yes, sir. तो आप इस डायरेक्शन में एरो को फायर करोगे विंड के अफेक्ट में, आपका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर वो अलोंग एक्स वेक्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यही Yes, sir. एप्लीकेशन है वेक्टर का, आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ये वेक्टर का क्या है, एप्लीकेशन चल रहा है कि आप वेक्टर पढ़ क्यों रहे हो। फिर कल बोलोगे कि सर वेक्टर का यूज क्या है, तो यही सब यूज है। हाँ, Yes, sir. तो इसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस W. डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड जू फायर द एरो
so that it hits the target. ठीक है ना? And the second part is what will its actual speed be. तो डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन आप फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो ये एंगल फाइंड आउट कर लो थीटा। ठीक है, तो हम कम से कम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि भाई नॉर्थ से, है ना, टारगेट से आप इतने एंगल पे डिविएट होके चला दो, लेफ्ट ऑफ द टारगेट से आप, समझ रहे हो, मतलब ये टारगेट है सामने, आप टारगेट के डायरेक्शन से इतना एंगल, थीटा एंगल आप डिविएट होके फायर कर दो एरो, तो पहुंच जाएगा टारगेट पे। ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? डब्ल्यू मालूम है, डब्ल्यू कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड। ए कितने से चला रहा है, 38 मीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड मतलब एरो का इतना ही वो चला सकता है। बताओ थीटा कैसे निकालोगे? देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सबसे पहली बार। यस सर। तो सामने क्या दिया, अपोजिट है, और ये क्या हाइपोटेन्यूस है। तो अपोजिट यस एंड सर। हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन में आता है। नो सर। अपोजिट कितना है 6, हाइपोटेन्यूस कितना है 38, है 38। ना, पर सेकंड में इतने मूव करते हैं, तो आपको ट्रायंगल मिल गया ना एक। यस सर। तो 1 सेकंड में आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा, 6 मीटर का और 38 हाइपोटेन्यूस का, 38 मीटर का हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना? तो यस सर। थीटा क्या हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स 6/38। 6/38। तो बताओ एंगल कितना हो गया? ये हमें नहीं करना है, कैलकुलेटर को करना है। सर 9.08 डिग्री। आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। तो ये 9.08 हो गया। ठीक है, यस तो सर। 9.08 मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, कि यू शुड फायर एरो अबाउट 9.08 डिग्री फ्रॉम, यू नो, लेफ्ट वर्ड। टू द लेफ्ट ऑफ द टारगेट। ठीक है, चलो यस अभी सर। स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड मतलब ये पर सेकंड में ये ट्रायंगल ट्रेवल हो रहा है, मतलब रुको हटा दो, ये ऐसा हटा देते हैं, तो अभी आपको डिस्टेंस समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। ठीक है ना? यस। तो ये पर सेकंड में इतना हो रहा है, तो पर सेकंड में रिजल्टेंट भी तो यही है ना, तो रिजल्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दोगे, राइट? यस सर। सो मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, कितना हो गया, 37.52। आंसर देख के कॉपी कर रहा हूँ मैं। ये कुछ और आएगा, ये एक्स है। ठीक है ना? तो मॉड एक्स कितना आ गया, 37.52 मीटर पर सेकेंड। मतलब बात समझ रहे हो, इसका स्पीड कितना हो गया, 37.52 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका यस सर। रिजल्टेंट नेट स्पीड जो है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है। तो ये कम होगा कि ज्यादा होगा? कम सर। कम ही होना चाहिए ना, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में 38 से चला रहे हो, आपको अफेक्ट कर रहा है विंड, तो कम होगा ना डायरेक्शन। यस सर। क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा होता है, बड़ा। यस सर। सर ये जो इन्होंने लिखा है a+w-w=x-w। हाँ, सर ये क्या है? ये तो वर्कआउट करके दिया है आपको। मतलब देखो ये क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू, ये चीज तो हमने कर लिया है ना। यस ठीक है, सर। तो इसमें क्या बताया कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डब्ल्यू ही है। हाँ, बिकॉज दिस यस सर। एक्स इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और वो यस एरो का भी डायरेक्शन बता रहा है, एरो का डायरेक्शन है एक्स माइनस डब्ल्यू। तो ये मतलब डब्ल्यू को ट्रांसफर कर रहा है ना, वो माइनस करके दोनों साइड। देखो ना, डब्ल्यू माइनस कर रहा है दोनों साइड, यस सर। समझ रहे हो, डब्ल्यू देखो दोनों साइड माइनस कर दिया है, तो डब्ल्यू कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स माइनस डब्ल्यू। ओके, तो ये यस। सिर्फ ये बता रहा है कि जो एरो का डायरेक्शन है, एरो इज मीन्स, ये एरो का जो ये डायरेक्शन है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरो।
जो ये चला रहा है जू। तो ये डायरेक्शन दैट इज एक्स माइनस डब्ल्यू। Yes, sir. इस बेसिस पे ये डायग्राम बना हुआ है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो कंपोनेंट फॉर्म मीन्स आप कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे एक्स वाई प्लेन पर? So, चार। 4 डायरेक्शन होते हैं, बहुत सही, राइट हो आप, बिल्कुल राइट हो। लेकिन दो ही लाइन के अलोंग डायरेक्शन होता है, एक एक्स एंड वाई, है ना, राइट। तो एक Yes, sir. पॉजिटिव एक्स होता है, आप जो 4 बोल रहे हो यही है ना, एक पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, है ना। Yes, sir. लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक्चुअली दो ही लाइन के अलोंग होता है, वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। Yes, sir. ओके, अच्छा अगर मैं ये वेक्टर बनाया हूँ ऑन पेपर, राइट, Yes, sir. तो एक ग्रिड लाइन चाहिए था, एक ग्रिड लाइन चाहिए। ग्रिड लाइन कहाँ से देखूँ मैं? रुको, नेट पे समझा। ठीक है, देख रहा है? Yes, sir. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, आ, एक वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड लाइन, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। लाइन ड्रॉ, को आगे बढ़ गया हूँ मैं, तो यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया हूँ मैं, ओके, इसको चलो ए Yes, बोल sir. देते हैं। तो अभी दो ही डायरेक्शन होते हैं एक्चुअली, एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है और एक अलोंग वाई एक्सिस होता है, ठीक है, राइट। Yes, sir. तो अभी ये वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब ये वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है, सबसे मेन बात, Yes, sir. है ना। तो ऑन पेपर, ऑन एक्स वाई प्लेन, आप दो ही तरीके से डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो, कि आप कितना एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो और कितना वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो, राइट है। Yes, sir. तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना ट्रेवल, एक्स एक्सिस तो सबको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना, Yes, sir. और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना ट्रेवल कर रहे हो आप, तो ये ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो मुझे। मतलब समझ लो कि ईच ग्रिड line distance is basically like each this distance is basically 1 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ कि along x एक्सिस कितना ट्रेवल कर रहे हो और फिर along y एक्सिस कितना ट्रेवल कर रहे हो, सो दैट यू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। So, six. 6 x एक्सिस के along कर रहे हो, वन Yes, टू sir. थ्री फोर फाइव सिक्स, परफेक्ट। तो आप 6 यूनिट x एक्सिस के along ट्रेवल कर रहे हो, है ना, 6 सेंटीमीटर, Yes. मैंने सेंटीमीटर ही बता दिया है, तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है, So, four YX. मतलब 4 यूनिट आप वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। Yes, sir. तो ये दो ही कंपोनेंट होते हैं, है ना, जो आपके वेक्टर को डिफाइन करता है। बात समझ रहे हो? कितने Yes, sir. कंपोनेंट आपके वेक्टर को डिफाइन कर रहा है? दो। दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? X axis and Y axis हाँ, तो उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट and Y component. एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। तो एक्स कंपोनेंट कितना है?
X component है 6 सेंटीमीटर। 6, ठीक है। एंड वाई कंपोनेंट कितना है? 4। 4। तो ये जो इस तरह से लिखे हैं ना वेक्टर डिफाइन करने के लिए, इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिख दो। बस यही होता है वेक्टर फॉर्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी बार को, जिसको मैंने ऑलरेडी ए से भी डिफाइन कर दिया है। तो ए बी बार को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसा लिखा है मैंने? एक बड़ा ब्रैकेट डाला है और 6 एंड 4, एक्स यस। कंपोनेंट ऊपर लिखा है और 4 नीचे लिखा है, ठीक है ना। ऐसा भी इसको नहीं रीड कर सकते, 6/4 भी नहीं बोल सकते, सिर्फ 6 4 लिखो और ब्रैकेट डालो, ठीक है। यस सर। कॉमा भी नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। यस सर। तो एक्स कंपोनेंट हो गया आपका 6, वाई कंपोनेंट हो गया 4। So that is how you can define the given vector, right? तो यही यस आपको सर। मैग्नीट्यूड भी दे देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर। तो x कंपोनेंट है ना 6 है, यस सर। y कंपोनेंट कितना है 4 है। तो मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बताओ। ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो आप देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है ना, यस सर। तो आपको x कंपोनेंट चाहिए, y कंपोनेंट चाहिए, और फिर आप सीधा पाइथागोरस लगा दोगे तो आपको जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। 60। राइट। यस सर। कितना होता है ये? 52। यस सर। ठीक है, तो 52 यूनिट्स हो गया आपके गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर्ड? सर दो ही एक्स चीज एंड चाहिए। वाई हाँ, कंपोनेंट्स। यस, दो ही चीज चाहिए। एक चाहिए एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपको किसी वेक्टर का एक्स एंड वाई कंपोनेंट पता है, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। एनी डाउट हियर? नो सर। ओके। अच्छा, अभी मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। यस सर। दूसरा पेज ले लूँ, दूसरा, एक मिनट, ठीक है। चलो अभी ये एक वेक्टर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, है ना। तो यस सर। इसके कंपोनेंट बता दो मेरे को जरा फटाफट। इस वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको दो कंपोनेंट चाहिए, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, बस बता दो जरा। एक्स सर क्या? कंपोनेंट क्या है? हाँ, सर -7x। 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 एंड -4। 1 2 3 4, सो -7 and 4। तो ये बात आप समझ गए कि अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो कंपोनेंट आपका नेगेटिव रहेगा, अगर यस सर। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मतलब वर्टिकली डाउन जाओगे तो आपका वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये बात तो आप बिना बताए ही समझ गए, ठीक है। वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम वेक्टर। है ना। कॉलम वेक्टर मतलब ये कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से ये एक तरीका है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम वेक्टर फॉर्म, सर। ठीक है। कॉलम यस वेक्टर सर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इस ब्रैकेट में लिख पा रहे हो, ठीक है। यस सर। एक्चुअली एक ही कॉलम में लिख रहे हो ना, इसके लिए, ठीक है। रोज ऐसा होता है, रोज ये रोज होते हैं, इसको रोज बोलते हैं। आप जब क्लास में भी बैठते थे किसी जमाने में, यस अभी तो घर पे ही बैठते हो जब, तो जो रोज होते हैं ऐसे ऐसे रोज होते हैं और ऐसे कॉलम होता है। यस तो सर। ये सिंगल कॉलम में लिख रहे हैं, इसके लिए इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलो, so we stop here, complete यस till सर। exercise
34E. ठीक है. Yes, sir. Then we'll meet next week. Yes, sir. Yeah. Bye bye. Bye, sir.